radio consolidative area in the left lung with internal foci of air or bronchograms. It is extending towards the left perihilar region. There is surrounding ground glass haze adjacent electric bands. There are air bronchograms. In keeping with these findings, my differential possibilities would be a rounded area of consolidation, suggesting infective process. In the mediastinal window, I can appreciate few lymph nodes. The esophagus, aorta, and the vascular, the walls of the heart appears unremarkable. Or sir, on mediastinal window, it appears slightly hypodense, might be suggesting internal area of necrosis or hypodensities. तो इसमें second differential sir bronchiolo-alveolar carcinoma होगा. What is your Sir, first differential? Sir, my first differential would be consolidative patch with its extension into the perihilar region. तो इसमें सर Okay, so you said two diagnoses, two differentials. One, you said Qadir was infected patch, rounded sort of a consolidation. Okay. Second, you said bronchiolo-alveolar cell carcinoma. Yes, sir. Okay. Bronchiolo-alveolar cell carcinoma is unilateral or bilateral? Sir, it is unilateral and it can be multifocal. Okay, it can be multifocal. If it's consolidation, then why it is cystic as well on the lower images of chest? Yes, sir, there are internal areas of hyperdensities in it. Okay, it could be a cystic area, it could be a consolidated area. Epicenter is likely cystic. So what other differential you are getting in your mind? Sir, if this mass contains cystic areas as well, then differential would be the adjacent जो है mediastinum हो, अगर if we consider that area, then this might be for duplication cyst. All right, but duplication cyst should be have a visceral communication. Esophagus is around here. Okay, it has not communication. It has not any communication with the esophagus. Any other DDs? Sir, what are the DDs of a cystic lesion within a lung? सर सिस्टिक लियन लंग्स में हमारे पास सर cystic sir CK अगर if we consider the age of the patient अगर वो if he is a child then we will have CCAM. Is this a patient child? Sir, if I zoom it then I can see the age of this 45 months years 45 years. So sir ये adult है. Adult में cystic lesion की क्या DD होंगी कदीर? Sir, can I include mediastinal masses as well? Mediastinum तो बीच में है ना, ये रहा mediastinum और लंग के दरमियान देखें एक पेरेन्काइमल डेंसिटी आ रही है ना. ओके, बाकी लोग गौर से सुने जो मैं कदीर से कह रहा हूँ. ऐसे ही अंदाज में आपका वाइवा होगा और आप सबको मजा आएगा अच्छी क्लास में. पहले जरा पूरा वाइवा का माहौल मुझे बनाने दीजिए. बज़ाहिर आपको लगेगा कि डॉक्टर शारिक को क्या हो गया, लेकिन गौर से सुनते रहिए जिस तरीके का अंदाजे बयान और गुफ्तगू हो रही है. लंग पेरेन्काइमा बीच में आ रहा है कदीर. सिस्टिक लीजन की कम ऑन एडल्ट में और क्या डीडी होंगी? आपने सीकैम का सीक्वेस्ट्रेशन अगर कहा, ये तो बच्चों में है. एडल्ट में क्या होती है? सर एब्सेस. एब्सेस, वेरी नाइस. और चलते रहो. मेम्ब्रेन किस में आती है?
जी सर, hydrated cyst। हाइड्रेटेड, ठीक है। नाउ यू आर टेलिंग एब्सेस, हाइड्रेटेड, ओके। जी सर। और और सर कुछ कोई हो सकता मैच है? हुआ तो सिस्टिक जो लिवर प्राइमरी जो है सीए, जिसमें ओके, मस्कस सेल उसमें हो भी गया। नेक्रोटिक नेक्रोटिक आ सकते हैं। गुड, शाबाश और शाबाश। सर हमारे पास कैविटेट जो सिस्टिक मेट्स हो जाते हैं सर, अगर है तो ऐसे सिंगल तो वो लेस लाइकली हो जाएगा। वेरी नाइस। सिस्टिक मेटास्टेसिस लंग में और किस बीमारी में आते हैं? सर सिस्टिक मेट्स में वो रीनल हो सकते हैं सर। रीनल के तो ज्यादातर हेमरेजिक होंगे। जी सर, ये अपने जी कोलॉन सी है कि सर। और उसके तो ज्यादातर आप लोगों के कैल्सिफाइड होते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, है ना भाई। चलें, कोई इशू सर, नहीं है, कोई इशू नहीं है। अभी ये बताइए कि सिस्टिक में अगर यही चीज सब कैराइनल लेवल पे होती तो फिर क्या होती? सर ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, ठीक है। तो ये इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है, रेयर केस है, और वो इन्फेक्टेड है, ये देखें। जी ठीक है, इसके लिए आप कौन सी मोडेलिटी नेक्स्ट कराते हैं सिटी के बाद? सर, इसमें हम नेक्स्ट जो है वो, इसकी कम्युनिकेशन तो कोई नहीं है, तो इसमें हम सर हमारे या पास अवेलेबल कम्युनिकेशन जो को है रूल आउट करने के लिए क्या कराते हैं? सर हम इसमें ब्रोंकोस्कोपी, अगर वो उसको हम रेफर करें पे वेरी नाइस। पल्मोनोलॉजिस्ट। हाँ, तो ये बोले हैं आप, ठीक है। एग्जाम फिल्म खत्म होने से पहले कदीर यू शुड बी सेइंग दिस, ठीक है। एमआरआई कराएंगे फिस्टुलस कम्युनिकेशन के लिए। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकोजेनिक सिस्ट की? सर इट कैन जो है फिस्टुलस कम्युनिकेशन बना सकती है सर। देयर कैन बी इन्फेक्टिव सेकेंडरी इन्फेक्शन, शाबाश और एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इसका। शाबाश शाबाश। ठीक है कदीर, जो सिस्टिक मेट्स आप बोल रहे हैं कैविटेटरी, उसमें Recording in यकीन करें progress. एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सार्कोमास, यूरोथेलियल सार्कोमास, ऐसे ऐसे कैविटेट करे जाते हैं। खुद ब्रोंकोपल्मोनरी जो आपकी एक तरीके से मासेस होते हैं, जैसे आपने कहा स्क्वेमस, वो कैविटेट करे जाएंगे। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये कदीर फिल्म समझ आई? सर आगे। इंट्रापल्मोनरी इन्फेक्टेड ब्रोंकोजेनिक से जब भी बोलो तो देखो एपी सेंटर देखो ना, प्रीडोमिनेंट कॉम्पोनेंट नीचे देख रहे हो, सिस्टिक है ना, जिसको सर आप हाइपोडेंस अपने डिस्क्रिप्शन में बता रहे थे ना। और देखें, प्योर वेल डिफाइंड शार्पली मार्जिनेटेड, यही चीज आईएमएम में शायद सब कैरैनल पर दिखाई हो। मीडियास्टिनम पे क्यों घुमा रहे थे? मीडियास्टिनम पे पहुंचोगे वो सारे साइंस पूछना शुरू कर देगा। व्हाट डू यू मीन बाय थोरैको एब्डोमिनल साइन? सर सॉरी, नहीं हाँ, पता तो सर। मीडिएशन का जुमला नहीं बोलना है। व्हेन यू आर सीइंग अ शार्प डिमार्केशन ऑफ अ लंग पेरेन्काइमा विद इन इट, है ना, ये देखें जहाँ माउस रखा हुआ है। बाकी ये है कि आसान आसान चलो ना, न्यूमेटोसील होते हैं, बुल्लाज होते हैं। पीडियाट्रिक आपने कहा, वहां तक मैं आपके साथ एग्री कर रहा था कि सीक्वेस्ट्रेशन है, सीकैम है। फिर आप अडल्ट पे आए, एप्सिस, हाइड्रेटेड। लेकिन हमें पहुंचाना ना पड़े, यू शुड बी सेइंग बाय योरसेल्फ। ठीक है ठीक है कदीप, भाई। चलो। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। म्यूट हो जाओ। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑफ 40 केसेस, जिसको जो मसला हो वो प्लीज माइक अनम्यूट करने से पहले चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके पूछे। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस फोरम एवरीवन। कोई बीच में अचानक 10 लोग माइक अनम्यूट करके नहीं बोलेंगे कि सर ये तो मुझे ये लग रहा था। आप पहले मेरी बात सुने, कैंडिडेट को मैं किस तरह लेकर चल रहा हूँ उसको सुने, अप्रोच समझने की कोशिश करें, क्या मेरे क्रॉस क्वेश्चनिंग है उसको सुनिए, ओके। उसके बाद आप लोग इंटरफेयर करें एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है आमिर? कैनन बॉल लुक लाइक दिस, अभी आपने पूछा, ये मैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन बताऊंगा। तो 11 साढ़े 11 तक हमारा सेशन चलेगा। एक बार केसेस हो जाने दीजिए, मैं आपके सामने मौजूद हूँ इंशाल्लाह। सारी आप लोग की परेशानी, हर्डल्स हम सॉल्व करेंगे। पहले मुझे हर एक को इक्वल टाइम देने दीजिए। ओके, नेक्स्ट फिल्म। अदनान, आप मौजूद हैं? दो कैंडिडेट्स हैं, अदनान आ जाए, अदनान। Yes, sir. ओके, डिस्क्राइब। Sir, I am provided with contrast enhanced CT scan of chest, lung window, and mediastinal window, predominantly the arterial phase imaging. On the mediastinal window, sir, I can appreciate that there is an ill-defined heterogeneous mixed solid cystic mass lesion, predominantly epicentered within the anterior mediastinum. The mass lesion is seen extending anteriorly up to the anterior chest wall.
and posteriorly it is seen extending up to the anterior wall of arch of aorta, and it is seen encasing the arch of aorta. However, no definitive invasion into the mediastinal vasculature, anterior chest wall, or to the adjacent soft tissue, adjacent lung parenchyma is appreciated. So the lesion on post-contrast imaging, the lesion shows heterogeneous enhancement with internal areas of non-enhancing cystic changes. I can also appreciate a few areas of calcification within this lesion. On the lung window, sir, I cannot appreciate any lung parenchymal abnormality, any consolidation or cavitation. No definitive metastatic lesion into the bony structures of the chest can be appreciated. Sir, based on my these findings, sir, I can my differential will be anterior mediastinal mass, which include germ cell tumors, sir, malignant germ cell tumors, or lymphoma, which is less likely as there are calcifications. So I will go with malignant. And then you will go for a biopsy. Okay. So I will go for a contrast CT scan guided biopsy, sir, ultrasound guided biopsy. Very nice. तो germ cell tumor आपने कहा ना, germ cell tumor कितने होते हैं अदनान? Sir, there can be benign, which include mature teratoma. Then there can be malignant, which include seminomatous and non-seminomatous. In the non-seminomatous types, there are embryonal tumors, Yorkshire tumors, and mixed type tumors. Sir, I would also like to get the alpha fetoprotein levels, beta HCG levels of the patients. Very nice, very nice. What is the syndromic association of mediastinal teratoma? सर सॉरी सर ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं. तो बहुत अच्छा बताया और पूरे केस को इसने फिनिश करा. कैल्सिफिकेशन अगर ना होती, लिपिड कंपोनेंट अदनान ज्यादा होता, फिर क्या बनाते? सर इट कैन बी देन थाइमोमा और थाइमोलाइपोमा. लिपिड लाइपोमा. अगर सॉलिड होता तो थाइमोमा. ठीक है. मायसीनिया ग्रेविस की हिस्ट्री होती, क्या बनाते? सर थाइमोमा. थाइमोमा. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस mediastinal teratodermoid? Sir, it can cause local mass effect on the adjacent vascular structures or the lung parenchyma. And sir, गुड. अगेन हेमरेज, न्यूमोथोरेक्स और फिस्टुला और रप्चर हो गया ना, ये अक्सर ब्रोंकियल कम्युनिकेशन भी दे देते हैं. इसकी वजह से मरीज खांसता है तो बाल निकल रहे होते हैं. ट्राइकोप्टिसिस कहते हैं अदनान उसको. चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अदनान म्यूट हो जाओ. एक्सीलेंट केस डिस्क्रिप्शन, वेल डिफाइंड है, एक तरीके से होमोजेनस है, नेक्रोटिक एरियाज आ रहे हैं, एनहेंसमेंट है, और एपिसेंटर देखें मीडिएस्टम के इंटीरियर कंपोनेंट पे, और कैल्सिफिकेशन है. लिपिड कंपोनेंट अगर आए तो लाइपोमा यानी फैट ज्यादा हो. अगर तो सॉलिड है तो थाइमोमा, मायसीनिया ग्रेविस की हिस्ट्री, और कैल्सिफिकेशन है तो टेराटोडर्मोइड. और याद कर लीजिए सब लोग, जो आपको दिखाया जाएगा वो कॉम्प्लिकेशन के साथ दिखाया जाएगा. अभी मैंने इस केस में नहीं दिखाई वो कॉम्प्लिकेशन, लाइक रप्चर, लाइक मीडियास्टिनाइटिस, लाइक पेरिकार्डाइटिस, न्यूमोथोरेक्स, ट्राइकोप्टिसिस. ठीक है. तो एंटीए मीडियास्टिन मासिस में वो 5 T's सबको आने चाहिए. फिर मैं बता रहा हूँ, थाइमोमा, थाइमोलाइपोमा, टेराटोडर्मोइड, थोरेसिक एओर्टा से रिलेटेड एओर्टिक एन्यूरिज्म वगैरह. ओके. और फिर अगेन थाइमस है, थायराइड, रेट्रोस्टर्नल गोइटर्स, जर्म सेल, नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स, लिम्फोमा, टेरिबल लिम्फोमा जिसको कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए सबको. ठीक है, ये केस भी डन. ऑल राइट, नेक्स्ट केस फॉर आप लोगों को लिस्ट दी हुई है बेटा, प्लीज लिस्ट के हिसाब से खुद माइक अनम्यूट करना. अब आप लोग शुरू कर दीजिए. सो नेक्स्ट 3 लोगों के नाम बता रहा हूँ, जो भी है आ जाए. आमिर, आयशा HMC से, आयशा रईस. कौन है? डॉक्टर आमिर, डॉक्टर आयशा HMC से. जी सर. चलें, HMC सर वाली डॉक्टर हैं. आमिर का मैं वेट कर रही थी. जी सर. हाँ चलें, आयशा पहले आप आ जाए. ठीक है सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. I have been provided with chest X-ray and CT scan of the chest and coronal and axial views. And the chest X-ray is PA as well as lateral views. And on chest X-ray, I can see that there
a bilateral, predominantly right-sided radio opacity seen with multiple focal punctate calcifications, predominantly in the upper zone. And on the lateral view, I can see that these opacities are predominantly located in the posterior mediastinum. On the CT, chest coronal, and axial sections, I can relate that these findings have the similar appearance on the CT, that they're more predominantly located in the right upper zone and that are irregularly lobulated and has got irregular margins speculated with central multiple punctate foci of calcifications. There are multiple dispersed punctate foci of calcification also seen in the bilateral lung fields, predominantly in the posterior zones with soft tissue density areas. And then I can also appreciate that multiple conglomerated lymph nodes, which are most of them shows calcifications and predominantly in the shape of the eggshell in Good. the involving bilateral mediastinum and perihilar regions. And my first diagnosis would be sarcoidosis, and my differentials will be pneumoconiosis, silicosis, or any tuberculous disease. And I would like to do further serum ACE levels as well as bronchoscopic biopsy and correlate it with the history of the patient. And then Okay. So patient is not female, patient ACE levels are negative. What other DDs come in your mind? You said 4: sarcoidosis, pneumoconiosis, silicosis, lymphoma, TB, ये सब आपने बताया. कोई एक रखें अगर ACE level negative आ जाए. So first I will go with the occupational history from the patient and also any allergic. Yes, there was some occupational history with this patient. So I would go with the silicosis. Okay. Simple silicosis? No, silicosis with formation of PMF. So it's more like sausage shape, but it is just single on the right side. So that's why I was a bit okay. not okay. So if it confident is to a say PMF case, what other investigation you would like to opt for this patient? Biopsy and PET CT. Okay. FDG heavily uptake आता है इस. ठीक है, याद रखना PET CT FDG avid uptake आएगा इसमें. Biopsy and FDG avid PET scan. चलें. So that was a case of Aisha. Very nice. Progressive massive fibrosis. DDs were absolutely right. Okay, but you should be seeing on an axial view. Okay, कोशिश करो कि एक्सियल कोरोनल लेकर नहीं आएगा. बात आपकी दुरुस्त है. सॉसेज शेप डेंसिटी मासेज आ रहे हैं सर अपर लोब्स में. और गौर से देखें ट्रैकिया एंड दीज ब्रोंकाई आर कॉजिंग एलिवेशन. ये देख रहे हैं. देयर इज इप्सिलैटरल पुलिंग ऑफ बोथ ब्रोंकाई. एक्सियल पे जहाँ रूट ऑफ ग्रेट वेसल होंगी ना या आर्च ऑफ एओर्टा होगी वहीं पे ही ट्रैकिया डिवाइड हो चुकेगा. ये एक्सियल में पकड़ने की पहचान है आयशा. कॉर्नर पे तो हर कोई पकड़ लेगा कि ये देखें यहाँ पे सॉसेज शेड मासेज हैं. आपने कहा एक्शल कैल्सिफिकेशन है. खुद इन मासेज की भी कैल्सिफिकेशन है. डिस्क्रीट फोकाई कैल्सिफिकेशन लंग पेरेन्काइमा के अपर लोब्स में है. आपने कहा कि ठीक है नोड्स आर कैल्सिफाइड एक्शल सारी चीजें आपकी दुरुस्त हैं. ग्राउंड ग्लास एज है. सेप्टल थिकनिंग है. बिल्कुल दुरुस्त. लेकिन ये कि एक्सियल पे आप आज कोशिश करिएगा रात में कि पीएमएफ को सीटी कोरोनल या सजाइटल के बजाय एक्सियल पे पकड़ेंगे किस तरह जहां आर्च ऑफ एओर्टा सुपियर वेना कहवा यानी हार्ट से ऊपर ही आपको नजर आएगा कि ब्रोंकाई खींचे हुए ऊपर की तरफ फाइब्रोस नजर आएंगे. ठीक है आयशा. बाकी डीडी बिल्कुल दुरुस्त फरमाइए आपने. सार्कोइडोसिस लिम्फो हर एक में आपको नजर आ जाएगी ऐसी कैल्सिफिकेशंस. टेलकोसिस ग्रेनुलोमेटोसिस उसमें भी आएगी. वेरी नाइस आयशा. ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट इज सर. आ जाइए. हाँ आमिर आ जाओ. वो कैनन बॉल मेट्स मल्टीपल होते तो आ सकते थे. नेक्रोटिक होते हैं लेकिन छोटे छोटे डिस्क्रीट होते हैं कैनन. ठीक है आमिर. चल स्टार्ट. Sir, I am provided with the chest X-ray
and CT scan chest, multiple views of a skeletally mature patient. On chest X-ray, I can see that in the right lung upper lobe there is a well-defined, rounded, soft tissue density mass. Apart from this, there also subtle cystic cavitary component of the lesion in the right parahilar region. As far as the bilateral lungs are concerned, I can see that in the left lobe, left peripheral lingual segment, there is another well-defined soft tissue density area. On HRCT axial view, I can see that in the right lung, there is a large mass-like area which is having both the soft tissue as well as a cystic component. And in that cystic component, there's also a basal membrane-like soft tissue thickening as well. The left lung is also showing in the peripheral lingual segment well-defined rounded mass. On mediastinal window, I can see that there is a hypodense mass in the left upper lobe, which is abutting the adjacent mediastinum and the chest wall. It is showing probably fluid density. The right perihilar region on the last image is showing a cavitary lesion with internal soft tissue component. Based upon the following observations, there are multiple soft tissue and cavitary masses in the bilateral lungs. So, is there any history of fever of this patient? No history of fever. Okay, sir. Um, um, the bone windows are normal. There are also a subtle hypodense area in the visualized right upper lobe of the liver. So features are in keeping with the multiple cavitary and solid lesions, like these are malignant masses. Okay. So malignancy is your first DD. Any other DD? It can be. See the second image, Amir. This one. अंदरून सिंध का रिहायशी है सर हाइड्रेटेड सिस्ट सर हाँ ये रही ना मेम्ब्रेन ये देखो जी सर वो फ्लोटिंग मेम्ब्रेन सर राइट नंबर लंग में नजर आ रहा है crumpled floating membrane in the dependent wall of the cystic cavity with bronchial communication as well आ रही है ना ये ठीक है तो इधर भी है मल्टीपल केसेस थे हमने मर्ज करके आपको दिखाए हैं प्योर सिस्टिक भी हो सकता है हमें अंदर फ्लूइड कंपोनेंट भी हो सकता है अंदर मेम्ब्रेन भी आ सकती है सुपर हेडेड इन्फेक्शन आ सकता है ठीक है ब्रोंकियल कम्युनिकेशन व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशन यू वुड लाइक टू डू इन दिस पेशेंट Sir, I would go for the hydrated serology as well as I will also like to go for the screening ultrasound of the liver as well because the lung and the liver are the two most common organs where we usually find hydrated cysts. So I will like to rule out if there is any hydrated cyst present in the lung as the liver as well. गुड गुड लिवर लंग स्प्लीन हर जगह पे वेरी नाइस है लेकिन जो भी देखो सुनो हमें 4 केसेस ऐसे हैं ये सुन लीजिए सब लोग और अपने पास मेंशन कर लें 4 केसेस ऐसे हैं और इत्तेफाक से स्टेशन भी 4 है जिसमें आपको एग्जामिनर आमिर हिस्ट्री नहीं देगा उनमें से एक या हाइड्रेटेड है राइट बकिया 3 आप लोग लिख लें आमिर फॉरेन बॉडी है बेटा हाइड्रेटेड नंबर 2 नंबर 3 बेजोर और नंबर 4 गौजी बायोमा क्या 4 बताया मैंने सर गौजी बायोमा बेजोर हाइड्रेटेड सिस्ट एंड फॉरेन बॉडी वेरी नाइस आमिर म्यूट हो जाओ एक्सीलेंट एक्सीलेंट ठीक है एक्सीलेंट आमिर
नेक्स्ट आयशा रईस आप आ जाएं, वेरी नाइस। चल जी आयशा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। So I am provided with axial and coronal images of HRCT chest, in which I can see that there is a thick wall cavitatory lesion identified in the right upper lobe. Um, there is surrounding ground glass haze, and the ground glass haze is also extending along the right bronchus. There are multiple other similar cystic cavitatory lesions in the right lung, and as well as on the left lung. A few small non-cavitatory lesions are also seen. These are predominantly subpleural in location, and a few of these are showing wedge shape. In the third image, the CT PA angiographic view, I can see that there are large filling defects in bilateral mean pulmonary arteries, suggesting thrombus. So, summing up my findings, this is a case of pulmonary embolism with pulmonary infarction. Next, I would like to first, since this is a panic finding, I would report this finding to the concerned team, and would like to refer this patient for further workup, for looking for D-dimer levels and ultrasound DVT Okay. bilateral limbs. Okay. So your first diagnosis is pulmonary embolisms with infarctions. All right. If this patient has a history of drug overdose, then in that scenario, septic emboli would be considered. Okay, what are the other duties of cavitatory lesions along with surrounding infiltrates? Fungal infection, aspergillosis. Good. Apart from that, vaginous granulomatosis. वेरी नाइस आयशा। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आ जाते हैं तो उन साइंस के नाम क्या क्या होते हैं जो हम देखते हैं? हैम्पटन साइन, सर मुझे क्लियरली याद नहीं है। हैम्पटन साइन होते हैं, फ्लेशनर साइन, फ्लेशनर साइन, वेरी नाइस। पोलोमेंट साइन, नकल साइन, आयशा इसको पढ़ लेना, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए, अगर ये सेप्टिक एम्बोलाई ही है तो आप पल्मोनरी आर्टरी के अलावा और कुछ देखेंगे? सर लार्ज वेसल्स को भी हम देखेंगे उनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए। वेस्कुलाइटिस देखेंगे, हार्ट के लेवल पे कुछ देखेंगे? हार्ट की वेजिटेशंस। वेरी नाइस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, वेजिटेशंस, ओके। क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेप्टिक एम्बोलाई आयशा? सेप्टिक एम्बोलाई सर नॉट श्योर। एम्पाइमा कर जाएगा ना, पेरिफेरी है ना, बाहर चले जाएगा, एम्पाइमा हो जाएगा, न्यूमोथोरेक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो वेरी नाइस आयशा, म्यूट हो जाओ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सो दैट वाज अ केस ऑफ सेप्टिक पल्मोनरी एम्बोलाई। ओके, पेरिफेरल है, कैविटेटरी है, सराउंडिंग ग्राउंड ग्लास हेज है और थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये देखेंगे जरूर। नेक्स्ट कैंडिडेट आफ्टर आयशा रईस आ जाइए। बुशरा रेहाना कौन है? बुशरा रेहाना आ जाओ। बुशरा अस्सलाम वालेकुम। चलें। Walaikum Assalam, sir. Sir, these are the CT scan axial views, lung window. Sir, there is soft tissue opacity seen in the right midzone. On soft tissue window, I can appreciate some punctate foci of calcification within it.
So rest of the lung fields appears unremarkable. So, sir, my finding is hamartoma. Hematoma. What are the other details of calcified isolated lesion within a lung? Sir, it can be calcified granuloma Okay. or sir, also any metastatic lesion, but they are multiple, not just single. Hmm. Okay. और कुछ लीनियर है, लीनियर होते हैं हेमाटोमा? नो सर, लीनियर तो नहीं होते। ऐसा सॉफ्ट टिश्यू जो विंडो इमेज है उसमें लग रहा है कि इस तरह लोब्यूलर सा। गुड। एक आप इस पे देख रही हो ना सिर्फ गोल सा, अगर जी कोरोनल देखें तो बल्कि इधर देखें। जी सर। एनी अदर टिपिकल वर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ ओपेसिटी? ब्रांचिंग ओपेसिटी। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग क्या हो सकता है ये ब्रांचिंग आपने कहा? सर ब्रांचिंग फ्लूइड फिल्ड ब्रोंकाई हो सकते हैं सर। फ्लूइड फिल्ड प्रोटीनेशियस म्यूकॉइड मटेरियल अगर आ जाए जो आपने कहा और उसी पे कैल्सिफिकेशन हो जाए तो फिर क्या डायग्नोसिस होती है बुशरा? सर ब्रोंकोलिथियासिस सर, इस तरह की कोई चीज। हाँ, फिंगर इन ग्लव है ना, ये याद आ रहा है? यस सर। हाँ, एबीपीए अब सर। कुछ एबीपीए इज अ गुड ड्यूटी। ओके, और आसान रखो ना, ब्रोंकोसील है ये, ठीक है। फोकल ब्रोंकोस्पील। डायलिटेशन हो गई, उसी में म्यूकॉइड इम्पैक्ट हुआ। और एक तरह क्या आपको नजर आ रहा है, ये देखें सराउंडिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा वेंटिलेशन भी मुतासिर हो रही है ना, जैसा एयर ट्रैपिंग है। एयर ट्रैपिंग भी हो रही है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। और अदर डीडीज क्या हो सकती थी अगर पूरी ही एयर ट्रैपिंग हो जाती और ऐसी ही लीनियर डेंसिटी आपको अंदर नजर आती? ब्रोंकल एट्रीजिया। एट्रेजिया। अगर यही चीज कंजेनाइटल हो जाए तो एट्रेजिया, अगर यही चीज एक्वायर्ड हो जाए तो या तो सीक्रेशन से होगी या ट्यूमर से होगी। ऐसा ही है ना? यस सर। तो ट्यूमर कौन सा होता है एंडोब्रोंकियल ट्यूमर? कार्सिनोइड्स। कार्सिनोइड, वेरी नाइस। और अगर कार्सिनोइड होता तो और पेरिफ्री के बजाय अंदर सेंट्रल मिलता, पेरिएलर मिलता। और यस कौन सर। सा कार्सिनोइड में आप स्कैन कराती हैं? सर ऑक्ट्रियोटाइड स्कैन। ऑक्टीरियोटाइड स्कैनिंग कराएंगे, ठीक है। अगर ये डेंसिटी ऐसी ना होती और सिर्फ लंग ही काला होता तो क्या डीडी होती बुशरा? सर फिर लोबार एम्फाइसमा। लोबार एम्फाइसीमा बच्चा अगर होता, ठीक है। यस सर। और अगर एक ही हाइलम छोटा होता फिर क्या डीडी होती? सर एक ही हाइलम छोटा होता तो सर मैक्लियोड सिंड्रोम। वेरी नाइस, मैक्लियोड जेम्स, ठीक है। तो समझ आ रहा है किस तरह यूनिलैटरल ट्रांसलूसेंसी पे हमने बहस करी? यस सर। ठीक है, ठीक है, एक्सलेंट। पिछला ये याद रखना, जब कभी आप ये सुन लीजिए, बाकी लोग भी, क्योंकि बाकी लोगों को लग रहा होगा हम दूसरों को नहीं पढ़ा रहे, हम हर कैंडिडेट को इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सबको भी आइडिया हो रहा होगा सवालों से। देखें, जब कभी बुशरा ने बताया सर ये ओपेसिटी पहले ये हेमाटोमा की तरफ लेकर गई, राउंडेड है, कैल्सिफाइड है, उसके बाद हमने इसको दूसरी इमेजेस दिखाई तो इसने लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न का जुमला ऐड करा। फिर इसको दिखाने पे हमने बताया कि ये देखें पेरिफेरल हाइपोडेंसिटी है ना बुशरा, ऐसे ही है ना? ब्रांचिंग एग्जैक्टली। पैटर्न है, फिंगर इन ग्लव है। देखें, हम लोग आप लोग को प्लीज हिंट ना दें, जैसे अभी प्रीवियस केस में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की तरफ ये बच्ची गई लेकिन हम लोग लेकर उसको सेप्टिक एम्बुलाय पे आए। इसी तरीके से इससे पहले वाले केस में फिर वो जो लड़का था उसको हम लोग ने लेकर आए, मेम्ब्रेन दिखाई। तो यस कोशिश सर। करें आप लोग सब लोग के ना, अब आप लोग जो एग्जाम खास तौर पे एफसीपीएस देने जा रहे हैं ना, उसमें आप लोग एग्जामिनर के मरूने मिन्नत ना रहे हैं, खुद देखें, क्योंकि अब ये होते होते कल रेस्पिरेटरी होपफुली फिनिश हो जाएगा। तो फिंगर इन ग्लव है, अगर ऐसी पिक्चर हो तो आप सबसे पहले बुशरा लंग के पेरेन्काइमा को देखेंगी। अगर यस तो सर। वो सही है तो ज्यादातर आपको म्यूकॉइड इन्फेक्शन ही तकरीबन दिखा रहे होंगे, इल्ला ये कि थोड़ी बहुत एयर रिटेंशन होगी। बहुत ज्यादा रिटेंशन हो जो लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न हो विदाउट एनी कैल्सिफिकेशन, क्योंकि इसमें म्यूकॉइड मटेरियल कैल्सिफाइड भी हो सकता है, तो वो केस होगा फिर ब्रोंकियल एट्रेजिया। और अगर सिर्फ एक लोब, जैसे आपने कहा कि एनलार्ज हो, हाइपोडेंस हो, एटीन्यूएट हो, तो जाहिर बात है वो लोबार एम्फाइसीमा पे जाएगा। और अगर पूरा ही लंग काला है और हाइलम छोटा है तो आप स्वेजेम्स या मैक्लियोड पे जाएंगी।
ठीक है, Okay, वेरी sir. नाइस पुष्पा, म्यूट हो जाओ, एक्सीलेंट। और इसमें अगेन ब्रोंकोस्कोपी कर लेंगे, ठीक है। ट्री इन बर्ड ऐसा नहीं आएगा। ट्री इन बर्ड बेसिकली उन नोड्यूल्स को कहेंगे इरफान जो इस किस्म की डेंसिटी के अराउंड होंगे, ठीक है। अभी दिखाते हैं आगे, आप लोग को परेशान ना हो। तौसीफ आप मौजूद हैं? जी सर, आवाज आ रही? जी जी, बिस्मिल्लाह करें तौसीफ। सर अच्छा, अब चेंज। Sir, I am provided with the chest X-ray frontal projection of a pediatric patient and a correlative CT scan, coronal and axial sections. Sir, on the X-ray, I can appreciate that there is increased lucency within the left lung as well as mediastinal shift towards the right side, and there appears to be decreased size of the right lung. So on the CT, I can appreciate that the left lung appears hyperinflated compared to the right side, and the right lung shows some ground glass with decreased volume as well as some hilar consolidation. So going further down in the CT slices, I can see that this increased lucency on the left side is confined to the upper lobe. So, sir, based on these findings, I would like to put the differential of congenital lobar overinflation, sir, Very with nice. mediastinal shift. Excellent, excellent. What is the commonest location of congenital lobar overinflation or emphysema in a chest X-ray? Sir, left upper, and then I think, Followed sir, by? right upper. Right upper. अच्छा, ये याद कर लो तौसीफ। लेफ्ट अपर, जी सर। जी राइट सर। मिडल, राइट अपर, बोथ लोअर। ठीक हो गया सर। लेफ्ट अपर, राइट मिडल, राइट ठीक अपर, है। बोथ लोअर, 1 2 3 4। ठीक हो गया सर। ओके, मुझे ये बताइए कि व्हाई दिस इज नॉट अ केस ऑफ पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया? Sir, if we can consider segmental hypoplasia in the diagnosis, but sir, I can appreciate that both lungs are almost of the same density on each side. वेरी नाइस। ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी के ही हैं, मतलब ये है जी कि सर। आपको अंदर ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री जाता हुआ नजर आ रहा है। जो आप जी सर। हमेशा पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया पढ़े ना, इधर प्राइमरी वैरायटी पढ़े या सेकेंडरी वैरायटी पढ़े, तो इस किस्म की उसमें मैच्योरेशन ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री के अंदर नजर नहीं आएगी, ठीक है। ठीक क्योंकि हो गया डीडी पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया ही तो सिर्फ इसकी ज्यादातर है, या फिर ये कि ठीक है एक सर। हाइलम छोटा होता तो क्या डीडी होती जो अभी बता रही थी वो बच्ची। स्वायर जेम्स हो सकती थी। वेरी नाइस, जी मैं ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ एक्सेलेंट। तो ये पोजीशनिंग याद रखना, लेफ्ट अपर, राइट मिडल, राइट अपर, बोथ लोअर, पल्मोनरी ठीक हो गया हाइपोप्लेजिया, सर। सीकैम, एट्रेजिया, स्वेयर जेम्स, ये सब डीडीज याद रखिएगा, यूनिलेटरल इंक्रीज ट्रांसलूसेंसी की। वेरी नाइस, म्यूट हो जाए, ठीक है। एक्सेलेंट। तो इसमें फर्दर क्या एडवाइस करेंगे? इसमें हमेशा आप लोग चेस्ट एक्सरे ही को लेटरल कर लो, या फिर ये कि ठीक हो आप गया लोग सर। सर्जिकल रेफरल ही दो, क्योंकि ऐसे मरीजों की लोबेक्टमी ही करते हैं फिर। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह सर। वेलकम। ओके, नेक्स्ट इज, बेटा अपनी अपनी बारियों पे आ जाएं। आज 40 केसेस करने हैं हमें, 10 बज चुके हैं। जी सर। आ सलाम। जाए जिया, वालेकुम सलाम। जी सर, अभी आई नहीं सर, आ गई अभी। जी सर, आई एम प्रोवाइडेड विद chest X-ray PA view of a skeletally immature patient, in which I can see that there is increased lucency involving the left hemithorax, and there is also expansion of the left hemithorax as well. I can see that there is no significant mediastinal shift. The trachea is central. Cardiac contours appear unremarkable. I can see that there is a nasogastric tube in situ. The right lung appears
Right now show coarse granular appearance that is diffusely distributed throughout all the lobes. I think there is ETT tube in situ as well. I cannot see humeral epiphysis, so it could be a premature delivery of the patient. So my topmost diagnosis could be hyaline membrane disease with complicated with left-sided pneumothorax. Giving a positive साइन का नाम पॉजिटिव सर साइन नहीं आ रहा यार विसरल प्लूरल साइन ठीक है visceral pleural sign are very nice. Okay, what other complication you can see in this hyaline membrane disease or respiratory distress syndrome apart from pneumothorax there? Sir, there can be tension pneumothorax as well. ठीक है, थोड़ा trachea deviate हो रहा है. Okay. There will be pulmonary interstitial emphysema. बिल्कुल आ रहे हैं ना, ये देखें आपके जितनी ये बबली लुसेंसीज हैं, these are actually within the interstitium tracking towards the hilum. Okay, ये देखें जी. These are not within the lung parenchyma, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक तरीके से RDS को फुलाने की कोशिश करी गई थी बाय एंडोट्रेकियल ट्यूब जो आपने कही ना. एनजी तो है ही, एंडोट्रेकियल है. एक और ट्यूब नजर आई थी इसमें दया या कैथेटर? ETT वो तो आ गई ना, ETT भी आ गई, एनजी भी आ गई. एक और कुछ जी सर, अम्बिलिकल आर्टरी, आर्टीरियल भी है, वेनस भी है. ठीक है, चलें. बाकी एनजी ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, वेरी नाइस. और साथ साथ आपको इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा भी नजर आ रहा है और ये ओवरलैंग चेस्ट लीड है, इसकी परेशानी नहीं लीजिएगा आप लोग. बाकी इसने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ग्रेश ओपेसिटीज हैं बोथ लंग्स में, लेफ्ट लंग में ज़्यादा है, न्यूमोथोरेक्स इज देयर, और से देखें थोड़ा ट्रैकियल डेविएशन इज देयर. फिर अच्छी खासी जो बबली सिस्टिक ल्यूसेंसीज हैं, दीज आर एक्चुअली नॉट विद इन द लंग पेरेन्काइमा, दीज आर विद इन द इंटरस्टिशियम, क्योंकि उसका एक एविडेंस आप लोगों को एंडोट्रेकियल ट्यूब की सूरत में नजर आ रहा है. सो दिस इज अ केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन with superadded interstitial emphysema and pneumothorax in a case of RDS, respiratory distress syndrome, hyaline membrane disease. ठीक है, चलें. ज़िया बहुत अच्छा पिक किया, वेरी नाइस. म्यूट हो जाएं ज़िया. गुड, शाबाश. ईटीटी जो है वो ऊपर है, अपनी जगह पे है, लेकिन जाहिर बात है उसने कॉम्प्लिकेशन कर दी है. हमेशा याद रखें 357 का रूल होता है फ्लेक्स न्यूट्रल और एक्सटेंडेड पोजीशन में ±2 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आयशा, ±2 सेंटीमीटर फ्लेक्स्ड न्यूट्रल और एक्सटेंडेड पोजीशन में. राइट मेन ब्रोंकस ये रहा. अगर ये राइट में होती तो लेफ्ट पूरा कोलैप्स मिलता आयशा. बीच बीच में अगर किसी के सवालात हो चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन प्लीज ये जो अभी डेकोरम बना हुआ है कि हर कोई अपनी बारी में बोल रहा है, प्लीज मेंटेन दैट डेकोरम. नेक्स्ट कैंडिडेट आफ्टर ज़िया इज, क्योंकि एंड में भी आपको मौका मिलेगा, फिर आप लोग धड़ाधड़ पूछिएगा. जी जुबिया आप हैं, चलें. I am provided with multi-planar, multi-sequential MRI images at the level of the lung apices. I can appreciate that there is a mass in the left apical region. I am further looking at the extensions of the mass. I can appreciate that it is also involving the adjacent vertebral body. However, I am looking at any rib invasion. There is impression of a rib involved on the left side. Further on post-contrast images, there is enhancement in the mass, which is returning heterogeneous signal on the T2 weighted images. Summing up my findings, my top differential is a Pancoast tumor. I would like to see dedicated views to see for any brachial plexus involvement.
And further, I would advise biopsy of the mass, which can be done CT guided. And further, I would advise multidisciplinary team meeting. Excellent. So what MRI will show you, Zubia, apart from brachial plexus involvement? It will show whether there is any intraspinal extension of the mass, or it will also show whether there is rib invasion or not. Pleural? Vascular involvement. Vascular, pleural, ठीक है, chest wall, pectoralis, cord, brachial plexus, artery vein, ठीक है, सारी चीजों की involvement आपको बता देगा ये. What other DDs came into your mind when you see apical sulcus tumor? In a pediatric age group, my top differential is Ewing sarcoma. And in this age group, metastatic deposit is my other differential. हाँ, मेट्स और ईविंग ही, क्योंकि वहीं पे ही फ्लैट बोन्स होती हैं, तो मेट्स और ईविंग ही आप पेनकोस में रख सकते हैं. या अगर कोई बोन का ही निकले, अगर उससे ट्यूमर अलग से कुछ भी हो सकता है, सार्कोमा भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग रख सकते हैं. मीजोथीलियोमा भी रख सकते थे आप, अगर बहुत ज्यादा लोब्यूलेटेड हो. बायलैटरल भी हो सकता था. ठीक है, काफी है जुबिया, वेरी नाइस. सो दिस वाज अ केस ऑफ पेनकोस ट्यूमर. और इसमें प्लूरल कॉर्ड, ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबक्लेवियन आर्टरी, वेन, नर्व्स, ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबकी इन्वॉल्वमेंट के लिए आप लोग एमआरआई ही देखेंगे. एक्सीलेंट. म्यूट हो जाइए जुबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गुल. आप आइए, आपकी टर्न है. यस सर. चलें. I am presented with CT scan chest, axial section, lung window, in which I can appreciate that there are I can appreciate that there is finger-like branching projection that are finger-like branching projections that are present in the right lung middle zone. Right lung middle lobe that is extending from hilum into the periphery, and at the periphery I can appreciate that there is well-defined rounded soft tissue opacity that is connected with these linear projections. I cannot appreciate any other lesion in the visualized lung fields. The visualized mediastinum at the lung window is unremarkable. I cannot comment on bone in this window because this is a lung window, and there is no any other abnormality is present in the visualized or in the provided sections. So on the basis of these findings, my first differential likely this is some pulmonary avium that is provided by a vessel. I can appreciate that there is a linear projection, likely this is the vessel that is providing this avium. I would like to scroll to see the any other avium or any other lesion that is present in the lung. Further, I would like to confirm my diagnosis on the CT angiography to see the draining or supplying vessels. I would also like to advise MRI brain to see any other avium that are present in the brain or any abscess that is present in the brain, or ultrasound abdomen to see any avium or any vascular malformation that is also present in the liver or abdomen. एक्सीलेंट. यानी आप देखना चाह रही हैं कौन सा डिसऑर्डर, अगर मल्टीपल एवीएम है तो? I'm Osler-Weber-Lindau syndrome. Very nice. Other name of Osler-Weber-Lindau is? Hereditary hemorrhagic telangiectasia. Okay, if this is an AVM, ओके, आपने बिल्कुल दुरुस्त पकड़ा. आर्टीरियल फीडर है. जो लोग बताना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, गौर से देखें. रियाना यही बता रही है, यही कह रही हो ना रियाना? ये जो आ रहा है वेस्कुलर आर्टीरियल सप्लाई आ रही है, वेनस ड्रेनेज जाएगी यहाँ कहीं पल्मोनरी वेन में, लेफ्ट एट्रियम में खुलेगी. वेरी नाइस. ये जा भी रही है, देखो एक एनोमलस वेन छोटी सी. ठीक है. तो इफ यू आर सेइंग दिस इज एन AVM, व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन दिस AVM कैन डू विद दिस पेशेंट? Sir, the complication include it can rupture. So the patient can present with hemorrhage, and the other complication is a brain abscess. So
एम्बोलिज्म जाएंगे, एब्सेसिस से भी Yes. पहले एम्बोलिज्म जाता है। Embolism. Yes, बाकी embolism ये and abscess. जी. एब्सेस, एम्बोलिज्म, रप्चर, हेमरेज, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। Rupture, hemorrhage. इवन हार्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा, हाई आउटपुट कार्डियक Yes. फेलियर, ठीक है। Yes. बाकी डीडी क्या होती है एवीएम की? एक ही होती है, वेरिक्स, दैट्स इट, पल्मोनरी वेरिक्स आप बोल देना। ओके, अगर यही ठीक. पेशेंट टीबी का होता तो टीबी में खास एन्यूरिज्म बनता है, उसका नाम Yes. पता है? That is Rasmussen aneurysm. एक्सीलेंट रिहाना, शाबाश, बहुत अच्छा पिक किया रिहाना। म्यूट हो Thank you, जाओ, sir. बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट कैंडिडेट इज, हाँ भाई 1 मिनट, 10वीं तो एमसीपीएस की है। असलम या फिर फैसल है मौजूद यहाँ? जूबिया की तो हो गई ना। असलम, फैसल, हाफिजा, बुशरा, एनीवन? जी सर। हाँ, कौन? बुशरा तुम हो? जी सर। हाँ चलो। I am provided with the X-ray chest frontal projection in which I can appreciate that there is the reticulonodular opacities are noted in bilateral upper lungs and also in the right lower lobe, and also I can appreciate that there are the multiple cystic bronchiectatic changes are noted in right lower lobe, giving a tram track appearance and signal ring appearance. Bilateral apical pleural thickening is also appreciated. Hyla or also appears to be prominent. I can appreciate that there are some calcific densities are present in the right hemidiaphragm. However, right CP angle is normal. I can also appreciate that there is the blunting of the left CP angle is also appreciated. Trachea is central in position. Visualized bones appears unremarkable. On the basis of these findings, my differential would be it would be cystic fibrosis. Okay, cystic Further, fibrosis, I any would other DD? or asbestosis on the basis of Okay, these calcified pleural plaques. सिस्टिक फाइब्रोसिस में कैल्सिफाइड प्लूरल प्लेक्स आएंगे या एस्बेस्टोसिस में आएंगे ज्यादा, बुशरा? Asbestosis में ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस में तो आपको सिस्टिक कैविटीज मिलेंगी ना, छोटी छोटी। ये जो जी आप सर। देख रही हैं, अगर सिस्टिक कैविटीज इनको बना रही हैं तो ये भी अगेन दोस्त कैल्सिफाइड ही हैं। ये देखें, इधर तो नजर आ, बल्कि लेटरल पे देखें, सब लोग देखें, जी जो सर। बुशरा बता रही हैं ये यही बता रही हैं कि ये प्लूरल कैल्सिफिकेशन है। अच्छा एक बात बताओ बुशरा, अगर ये प्लूरल कैल्सिफिकेशन होती, apart जी from asbestos related lung disorder, what other DDs will come in your mind? प्लूरल प्लेक्स होते हैं, ये मेसोथेलियोमा में होती हैं। वो तो एस्बेस्टोसिस की कॉम्प्लिकेशन ठहरी ना। टीबी में। वेरी नाइस, टीबी में, और एक और बता दो। और टीबी में हो सकती है प्लूरल और बेस्ड नहीं आता। मेट्स, ठीक है। प्लूरल बेस्ड मेट्स। जी सर। एम्पाइमा में भी कैल्सिफिकेशन ऑनगोइंग आ सकती है, प्लूरल बेस्ड मेट्स में आ सकती है, कोई रिप के ट्यूमर्स हो उसमें कैल्सिफिकेशन आ सकती है जो प्लूरा में इन्वेट कर रहे हो, ठीक है। बाकी एस्बेस्टोस जब भी कहोगी, एस्बेस्टोस रिलेटेड लंग डिसऑर्डर, what are जी the सर। other complication of asbestosis? Other complications of asbestosis, it may leads to pulmonary hypertension. Excellent, Cor excellent. Cor pulmonale। pulmonale, very nice, very nice. जी Mesothelioma itself, ठीक है ठीक है। बाकी यही है, एक खास बॉडीज भी बनती है ना, हॉली करके कुछ होता है ना, नाम सुना है उनका, हॉली लीफ बॉडीज वगैरह। अभी खैर इसमें, हाँ जी सर, इसमें नहीं इसमें है तो प्योर, सर नहीं है। हाँ उसमें नहीं है, वो मैं पूछ रहा था। वेरी नाइस, तो सबको ये नजर आ रही होंगी जो हफीजा बुशरा आप लोग को दिखा, ये देखें ये नजर आ रही है, लेटरल पे ज्यादा अच्छी एविडेंट है। बाकी एम्पाइमा, टीबी, फाइब्रोथोरेक्स, प्लूरल बेस्ड मेट्स, एस्बेस्टोस रिलेटेड लंग डिसऑर्डर की प्लूरल कॉम्प्लिकेशन की डीडीज में से हैं। एक्सेलेंट, शाबाश बुशरा, म्यूट हो जाइए। वेरी नाइस। नेक्स्ट कैंडिडेट आफ्टर हर इज, जो भी है जल्दी जल्दी आ जाइए, एफसीपीएस वाले। हैदर आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। स्टेशन नंबर 12। I've been provided with axial and coronal reconstruction of CCT chest. I can appreciate that there is a fairly defined cavitary lesion in the left upper lobe,
showing meniscus sign and intracavitary soft tissue. Along with that, I can appreciate that in the left the lingual segments, cicatricial changes along with bronchictatic changes are appreciated. In the coronal images, I can appreciate that soft tissue thickening is also appreciated in the apical region. There is left-sided mediastinal shift. The right lung shows a hyperinflation. In the left lung, few bronchoctatic changes and cicatricial changes are also appreciated. In the coronal images, I can appreciate that several tree and bud opacifications are also appreciated in the lower zone. On the contrast images, the solid component in the cavity is enhancing. Keeping in view these findings, my top differential is pulmonary tuberculosis with complication and Rasmussen aneurysm. The second differential also includes the aspergilloma formation. Further, Excellent. I would go for the TB workup and bronchial lavage for hyphae, fungal hyphae. फंगल हाइफी आप सर वैसे उसको माइसीटोमा का बनता नहीं है सोच रहे हैं अगर हाइफी का सोच रहे हैं जी, मतलब सेकंड में सर वैसे तो ये वो है रेसम्यूसन एंड्रिज्म है सर क्योंकि एनहांस कर रहा गुड एनहांस कर रहा है तो एंजियोग्राफी एम्बोलाइजेशन की तरफ जाओ ना ठीक है है जी सर ओके फंगल हाइफी हाँ ठीक है अगर आप सुपर एडिट इस इमेज को देख के कहते हैं कि माइसीटोमा है कि सराउंडिंग इन्फिल्ट्रेट्स हैं कंसोलिडेशन है एयर ब्रोंकोग्राम है ठीक है लेकिन जब इट एनहांसेस देन एंजियोग्राफी एम्बोलाइजेशन इज जी द सर राइट ऑप्शन अच्छा ये बताइए व्हाट अदर कॉम्प्लिकेशंस कैन टीबी लीड टू अपार्ट फ्रॉम रेसमुसन एन्यूरिज्म सर अपार्ट फ्रॉम टीबी it can cause fibrosis sir it is a predisposing cause for malignant conversion मतलब mass formation के लिए भी सर predisposing cause है सर थर्ड अगर जो तो है फाइब्रोसिस सर ज्यादा हो जाए तो जी सर थर्ड जो है सर प्लूरल इफ्यूजन्स कर सकता है नीमोथोरेक्सिस कर सकता है सर प्लूरल फिस्टुलास बन प्लूरल फिस्टुलास बन सकते हैं इम्पाइमास बन सकती हैं सर इसके शाबाश अंदर शाबाश इम्पाइमा नेसेसिटेंस बन सकते हैं सर शाबाश रिब्स में इरोजन्स कॉज कर सकता है सर जो इसकी स्पाइन की कॉम्प्लिकेशंस है सर उसके साथ भी सर पोस्टरल चेंजेस सारी काइफोसिस सर मल्टी ऑर्गन कर सकता है सर वेरी इन्वॉल्वमेंट नाइस बस काफी है मेरे ख्याल से बाकी ये है कि एंजियोग्राफी की कॉम्प्लिकेशन अगर कोई पूछे तो कह देना कौन सा शॉक स्पाइनल शॉक ठीक है स्पाइनल शॉक श्योर सर चलें क्योंकि थैंक यू ब्रोंकियोग्राफी सर और ब्रोंकियल एंजियोग्राफी और स्पाइनल एंजियोग्राफीज ये सब जो है स्पाइनल शॉक कर सकते हैं वेरी नाइस है म्यूट हो जाए एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शन जिन जिन लोगों ने इसको माइसीटोमा अगर बोलना था तो प्लीज जिस तरह भी हैदर आपको बता रहे हैं कि एओर्टा इतनी बड़ी आ रही है इसको यहाँ पर भी देखें तो फंगल इन्फेक्शन का अगर आप एयर क्रिसेंट और मोनेड और ये सब बना रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं आप लोग क्योंकि ये चीज वो चीज एनहेंस नहीं करेगी उसमें मोनेड साइन एयर क्रिसेंट जो बोले वो इस इमेज को देख के तो आप लोग बोल सकते थे इन दो इमेजेस को देख के नीचे वाली इमेजेस को देख के आप लोग नहीं बोलेंगे हम ना आप आ जाइए वो हम ना जो कि ऑब्जर्वर नहीं है जी चले I am provided with coronal axial images of the chest and abdomen. Here I can appreciate that there are the multiple cavitatory lesions with the surrounding calcifications are noted in bilateral lung fields. In the right, I can with internal soft tissue component. These are densely calcified peripherally. And on coronal images, I can appreciate that the liver is enlarged in size, and there are also multiple lymph nodal masses. And spleen is also enlarged and lobulated, and I can appreciate a nodule in the right adrenal gland. These, based upon my findings, these look like a hematoma with as the stomach is also thick walled and shows the enhancement with the
with hematoma. This is a complex involving of hematoma, Carney complex with the GIST formation and multiple enlarged lymph nodes. Okay, hematoma with GIST formation and large lymph nodes. Sum up your case. Final diagnosis. It's a Carney complex. Carney complex या Carney triad? It's a Carney triad. Sorry, Carney triad. क्या क्या 3 चीजें होती हैं उसमें हमना शाबाश? सर एक तो पल्मोनरी हेमाटोमास होते हैं, गेस्ट होता है, और तीसरा जो है वो एड्रीनल एक्स्ट्रा एड्रीनल एड्रीनल पैरागैंग्लियोमा हाँ जी पैरागैंग्लियोमा. ये आ रहा है ना ऑर्गेनोजूकर कैंडल पे हमना ये देखो. यस और सर. हेमाटोमा को छोड़ के कॉन्ड्रोमा बोल दो तो ज्यादा अच्छा. ठीक है. ओके. हेमाटोमा तो एक ही होगा ना जिसका डबलिंग टाइम 20 सेल होगा. क्या ख्याल है? आपकी डिस्क्रिप्शन सही है. कैल्सिफाइड देखो, जब भी कैल्सिफाइड है ना, कॉन्ड्रोमा, हेमाटोमा, वेरिसेला, ये 3 याद रखना. कोई एक दिखा रहा होगा. कौन से 3 बताए? कॉन्ड्रोमा, वेरिसेला और और हेमाटोमा. ठीक है. हेमाटोमा. जी. बाकी ये है कि जब आ जाए ऐसी चीज तो एक नजर, चूंकि आप हो तो रेस्पिरेटरी पे, और कल हमने एक बात बताई भी आप सबको कि डेमो क्लास में, कि जब रेस्पिरेटरी देखें तो जीआईटी भी एक नजर देख लें. इतने बड़े बड़े लिवर मेट्स भी तो आ रहे हैं. ये देखो हेपेटोमेगैली भी है ना इस जेस्ट की, जो स्टमक की थिकनिंग आपको नजर आ रही है. सबको देखें, गौर से देखें सब लोग. लोबुलेटेड जो थिकनिंग, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक विद पैरागैस्ट्रिक फैट स्ट्रेंडिंग एंड एनलार्ज नोड्स जो आपको नजर आ रही है, वो लिवर मेट्स का भी शिकार हो गया है मरीज. कॉन्ड्रोमा तो अपनी जगह है ही है. और पैरागैंग्लियोमा जो है वो ऑर्गन ऑफ जूकर कैंडल के पास है. तो इन सब चीजों को अगर आप मिला लें तो ये जिस तरह बता रही हैं हमने आपको, दैट इज अ केस ऑफ कार्नी स्ट्राइड. आपने सिंड्रोम या कॉम्प्लेक्स भी कहा, उसमें क्या क्या होता है? सर उसमें एक में कार्डिक मिक्सोमा होते हैं, हम्म. और मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रही. एक कार्डिक मिक्सोमा याद है उसका. कार्डियक मिक्सोमा बोल दो. फिर आगे जी. चलो तो टेस्टिकुलर पिट्यूटरी ट्यूमर्स बोल, टेस्टिकुलर पिट्यूटरी थायराइड 3 बोल देना ट्यूमर. इतना भी काफी चल जाएगा. बाय द वे और भी होते हैं, कुशिंग्स भी होता है उसमें, ऑस्टियोसार्कोमास, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास भी होते हैं. उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होते हैं, एक्रोमेगैली होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं. स्किन लीजन्स होते हैं खास तौर पे. तो बहरहाल बस इतना भी काफी है. ठीक है हम ना. वेरी जी सर. नाइस. थैंक यू. शाबाश, म्यूट हो जाओ. एक्सेलेंट. बाकी ये है कि अगर कार्नी सिंड्रोम आप लोग करें, ओके, ट्राइड से हट के, तो मेन सिंड्रोम, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया का सिंड्रोम भी उसके साथ एक एसोसिएटिव फीचर होता है. ठीक है. चलें. नेक्स्ट इज हमना के बाद हैदर हो गए. हमना के बाद कौन है? हिरा, आप हो? जी हिरा सर. जब्बार है ना. चल. जी सर. I am provided with multi-sequential CT sequences in which axial and sagittal views, lung window and mediastinal window. In lung window, I can appreciate that cardiac size is normal. I can appreciate that in the left lower zone, I can appreciate that there is an polypoidal opacity in the left lower zone, which is showing a fluid density signal in the mediastinal window. Also in the right lung, I can appreciate ground glass opacification with reticulation. Sir, any specific history of patient? Any specific history of this patient is that since birth he has repeated chest infections. Okay. Okay, I can appreciate that there are multiple cystic bronchiectatic changes noted in the upper zone. I can appreciate that the opacity which is seen in the left lower zone is showing a communication with the vessel on the mediastinal window. Summing up my finding, my topmost diagnosis is that it is a case of intralobar sequestration. Intralobar या extralobar? इंट्रालोबार या एक्स्ट्रालोबार? एक्स्ट्रालोबार होगी फिर. अच्छा, यानी आप कंफ्यूज हो गए. कोई इशू नहीं है. How will you differentiate between intra versus extra? What are the features of intra versus extra?
सर आर्टीरियल सप्लाई तो दोनों की एओर्टा से होगी, लेकिन जो वेनस ड्रेनेज होगा वो एक्स्ट्रा लोबार का जो होगा वो सिस्टेमिक में होगा, और जो इंट्रा लोबार का होगा वो पल्मोनरी में होगा। ओके, और जो एक्स्ट्रा लोबार होगी उसका प्लूरा सेपरेट होगा, जो इंट्रा लोबार होगा उसका अपना प्लूरा होगा, वो लंग के अंदर ही होगा उसका प्लूरा, उसका सेपरेट प्लूरा नहीं होगा। और जो इंट्रा लोबार होगा वो एडल्ट लाइफ में प्रेजेंट करता है, जो एक्स्ट्रा लोबार होता है वो इन्फेंट लाइफ में प्रेजेंट करता है, और जो एक्स्ट्रा लोबार होता है उसके साथ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं, इंट्रा लोबार के साथ कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं। और इंट्रा वेरी लोबार नाइस। तो जो ये है ब्रेस्ट वो, शेडो इतने आपको फैटी फाइब्रोफैटी नजर आ रहे हैं, तो ये इन्फेंट है कि जी सर एडल्ट है? बड़ी एज का है ना, तो फिर ये इंट्रा लोबार ही हुआ ना, इंट्रा ही है, ठीक एक्स्ट्रा है, लोबार नहीं हुआ, इंट्रा इंट्रा हुआ। ही है ना, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोगों को एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी तो नजर आ रहे हैं। जी सर। इन्फेक्शन भी तो इंट्रा के साथ होता है ना। बाकी आर्टीरियल सप्लाई आपने पकड़ ली, जबरदस्त, ठीक है। एओर्टा ई जी से सर। निकल रही है, डिसेंडिंग एओर्टा से, बसा होगा तो ऊपर आर्च से भी निकलती है। लेकिन ये याद कर लें, एज पे ही बता दें, और कुछ समझ नहीं आए तो इंट्रा एक्स्ट्रा में से कॉमन कौन है? इंट्रा। इंट्रा, बस इंट्रा ही है ये, ठीक है, वेरी नाइस। तो इसमें भी इंसान कंफ्यूज करता है। अगर इसी के साथ ल्यूसेंसीज आ रही होती हीरा और डायफ्राम इंटैक्ट ना होता तो डीडी क्या हो जाती? एज अगर एज एडल्ट होता या एज यंग बच्चे वो होता, जो भी होता, अगर डायफ्राम अगर इंटैक्ट इसी के नहीं साथ होता, तो हर्निया होता। हर्निया होता। वेरी नाइस, ठीक है हीरा, म्यूट हो जाओ, शाबाश। तो दैट वाज अ केस ऑफ इंट्रालोबर सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, हीरा जेब है यहाँ पर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। चले, वालेकुम सलाम, चल। Okay, sir, I am provided with multiple images of CT scan and corresponding chest X-ray of skeletally immature patient. First, I would like to explain the X-ray. In the chest X-ray, I can appreciate that there are multiple cystic lucencies are seen involving the right hemidiaphragm, causing mediastinal shift to the left side. However, I can appreciate that the diaphragmatic contour is normal. There is no evidence of pneumothorax, pleural effusion, pneumomediastinum. On the corresponding CT of the same image, I can appreciate that multiple cystic lucencies are seen, of which the largest one measuring 2.5 into 3.4 centimeter. And I cannot appreciate any evidence of contralateral lung parenchymal pathology. There is no evidence of any rib fracture or or spine or clavicular fracture in the provided image. So based upon my findings, my provisional diagnosis is that of congenital cystic adenomatoid malformation type 1. What Further, are the I other would types? other type is type 1, type 2, type 3. Type 1 is from 2 to 10 centimeter. Type 2 is less than 2 centimeter, and type 3 is less than 5 mm. What is the management of a case of sequestration और सीकैम? इससे पीछे sequestration दिखा, और अब सीकैम। जी सर। सीकैम की मैनेजमेंट क्या होती है? सर सर्जिकल रिसेक्शन करवाते हैं। वेरी नाइस, सर्जिकल। ठीक है, यानी वही और लोबेक्टमी हो सर जाएगी इसमें भी। जी सर, और इसकी एसोसिएशन अगर ये दोनों इकट्ठे हो तो सर फिर हाइब्रिड लीजन, सीकैम एंड bronchopulmonary sequestration. If both are यस, present, then these are called hybrid lesions. बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर टाइप 2 में ज्यादा होते हैं एसोसिएशन, जो जी होगी सर। टाइप 1 में नहीं, 2 Type में होगी। वेरी type 1 नाइस, is common and type 2 is associated with multiple anomalies. वेरी नाइस Renal agenesis. एक्सीलेंट। पास हो भाई, पास हो, बेफिक्र हो जाओ। Thank you. चलो, ओके, Thank you, sir. नेक्स्ट आफ्टर हेरा इज, हाँ भाई आ जाइए हमेरा, और दूसरी हमना या इफ्रा कोई है यहाँ पर? थोड़ा जल्दी आ जाए, 10-15 केसेस और करेंगे। आ जाइए उमेरा, अदनान, हमना, इफ्रा और कामरान, चारों में से कोई आ जाए। नो वन, ठीक है। खुबाब, किंजा, मनाल कोई है? एनीवन? खुबाब, किंजा, मनाल, मुस्तजब, नादिया, नजमा। हाँ भाई, मनाल आ जाओ।
जी जी मनाल। Okay, Manal is not responding. Mustajab, Nadia, Najma, Nawaz, नायाब। जी फातिमा, कौन है फातिमा? कौन बेटा? मुस्तजब आप हो? कौन? नाम बताओ फातिमा पूरा। सर अरबाब फातिमा अरबाब। अच्छा अरबाब तुम, चलो अरबाब स्टार्ट हेलो बेटा। जी जी आवाज आ रही है सर? जी जी जी। कोशिश कर लेती हूँ थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am provided with chest X-ray, frontal and the lateral projection, as well as the CT scan, lung window, axial and the sagittal images. Here I can see there is inhomogeneous opacity is noted at the right cardiophrenic angle, with well-defined margins, no calcification or air fluid level within it. It's not causing any significant mediastinal shifting. The diaphragm is also intact. And on the seeing the CT scan, I can identify multiple air lucencies, or air containing areas within the right middle lobe. My findings will conclude the suspicion of my finding will conclude Morgagni's hernia. सही है सर? ठीक है, इतना परेशान क्यों हो रही हो? सही तो बता रही हो। Okay, Morgagni hernia. What if it is present on the right side? ये तो right पे Morgagni है, left side? Bogdalic. Okay, Bogdalic और Morgagni। अगर उसके अलावा कोई चीज सोचनी होती, अगर इसी में फैट होती, फिर क्या सोचती? सिर्फ पेरिकार्डियल फैट पैट। कॉमनेस्ट वही है, ठीक है। चलो जी सर। ये तो सस्ते में छूट गई। एक मिनट रुको, चलो बल्कि दूसरे से पूछते हैं, छोड़ो। ओके, नेक्स्ट इज नायाब। आ जाओ नवाज। नजमा कौन है भाई? अरबाब जरा म्यूट हो ना, अभी ये तुमसे एक थोड़ा टफ पूछेंगे आगे। रबिया, रमीशा, सदीद कौन है भाई? जल्दी जल्दी आ जाएं, खत्म कर रहे हैं। बकिया 25 केसेस या 20 केसेस कल करेंगे। सर मैं जी सर। आ जाओ। हाँ खुबाब तुम आ जाओ पहले, फिर मीशा आप आ जाना। चलें खुबाब। जी सर। Sir, I have been provided with the HRCT chest and X-ray images. There is on HRCT, there is multiple cystic lucency scattered along the subpleural region in the bilateral lungs, more marked in the bases. The extraction bronchiectasis and the interstitial septal thickening and the reticulation also noted, more marked on the bases. And in the chest X-ray, there is reticular shadowing along with cystic lucencies noted in the bilateral lung lower zones. So all these findings are suggestive of UIP pattern. हनीकॉम्बिंग हो गई ना? honeycombing appearance. अच्छा ये बताओ, यूआईपी एक जरा ट्रिकी सवाल है, बल्कि Yeah. पता ही होगा तुम्हें। यूआईपी और किस डिजीज की एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन है? UIP सर किसी हाँ IPF की है ना, IPF idiopathic pulmonary fibrosis. वो तो उसका एक एडवांस वर्जन हो जाएगा ना, कि एंड रिजल्ट तो फाइब्रोसिस ही है। मैं कह रहा हूँ कौन से कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं, लेट मी ईज योर क्वेश्चन, कौन से कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं विच कैन लीड टू यूआईपी, ये पूछना चाह रहा। So SLE, SLE, वेरी नाइस, scleroderma, गुड गुड, ठीक है। पॉलीमायोसाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। polymyxoderma. हाँ ये सब जो है यूआईपी, देखें हमेशा UIP याद pattern रखें। का वेरी नाइस खुबाब। देखें अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये देखें पहले हमने यहाँ दिखाया था कि कॉम्प्लिकेटेड सिलिकोसिस कैन लीड टू पीएमएफ,
टीबी कैन लीड टू फाइब्रोसिस, और जितने कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं दैट कैन फर्स्ट लीड टू दिस हनीकॉम्बिंग, जिसको आपने कहा यूआईपी। यूआईपी और एनएसआईपी में कैसे फर्क करते हैं खूब आप सबको सर बताओ। यूआईपी में हनीकॉम्बिंग अपीयरेंस आती है और एनएसआईपी में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी आती है, ग्राउंड ग्लास हेज आता है, वो भी सब प्रूव होता है। और इसमें एक वर्ड होता है सर, अपर एंड लोअर ग्रेडियंट, जिसमें हम कहते हैं कि जो लोअर बेसिस ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। अपाइको बेसिलर ग्रेडियंट, वेरी नाइस। अपाइको बेसिस। चलें, बेहतरीन। बस वो कनेक्टिव टिश्यू हुबाब उनके नाम याद रखना, फिर बता रहे हैं हम लोग आपको, उनके नाम याद कर लें, विच कैन लीड टू इवन जो आप लोग का ये होता है एचएसपी हाइपर सेंसिटिविटी, वो भी वो सेकंड एंड लास्ट स्टेज, स्टेज। हाँ एंड सेकंड स्टेज लास्ट, एंड स्टेज तो फिर फाइब्रोसिस ही है सबकी। सेकंड लास्ट स्टेज मेजॉरिटी की यूआईपी ही होती है, एंड रिजल्ट सबकी फाइब्रोसिस है, सिवाय एक खास फाइब्रोसिस के जिसका नाम था प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। चलें, तो नाम याद रखिएगा सब लोग, म्यूट हो जाएं खुबाब। वेरी नाइस। आरएएसएलई वो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा एक ही नाम है सारे, पॉलीमायोसाइटिस वगैरह, ठीक है, एचएसपी वगैरह, ठीक। तो ये यूआईपी पैटर्न देते हैं। आज वो मीशा कौन है यार, इसका नाम तो रमीशा हो, कौन थी वो मीशा, कौन आया था? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम सलाम। हाँ रमीशा आ जाओ। जी सर, मैं sir, I'm provided with CT. Bismillahirrahmanirrahim. I'm provided with CT scan lung window of a skeletally mature patient, axial and sagittal views, in which I can appreciate multiple cystic lucencies. Multiple cystic lucencies in the right upper zone. There is associated volume loss in the right lung. I can also appreciate there are few apical pleural thickening associated traction bronchiectatic changes that are present in the right upper lobe. Few calcified granulomas are also seen in the right upper zone. There is mild hyperinflation of the left lung and contralateral right-sided shift of the mediastinum. Summing up all my findings, my diagnosis would be right upper zone fibrosis with associated pleural thickening and granulomas in subpleural location. This can be secondary to any infective process. The infective processes that usually involve the upper zones include tuberculosis, sarcoidosis, and now I'm looking at the mediastinum. I cannot appreciate any lymphadenopathy in this section. The contralateral lung appears normal. Okay, so left lung is normal. Every pathology is in the right lung apex. So you said sir. multiple things: TB, sarcoid, lymphoma. What single diagnosis comes in your mind, considering there is volume loss, cystic areas in the right upper lobe? Sir, tuberculosis. So is it a simple TB or any other thing as well? Sir, TB with cavity formation. TB with cavity with internal soft tissue density nodule, soft tissue density plug in the right upper zone, likely superimposed fungal infection, aspergilloma, aspergillus infection, forming monod, some monod sign, crescent sign, air crescent sign. ठीक है, तो ये दिखाने पे नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है, सांस ले लो तुम। तो एयर क्रिसेंट है, मोनेड है, बिल्कुल है, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हैं। देखिए टीबी मैंने अभी बताया ना, रेस्मुसन के साथ दिखाएंगे या इस तरीके से। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ये मुझसे सवाल पूछा था, आप भी बताइए। Sir, simple aspergilloma. Then is semi-invasive aspergillosis, and then is invasive aspergillosis. Good. चार बस याद रखो, सेमी इन्वेजिव, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, एबीपी है, ठीक है, सब लोग याद कर लें। सेमी इन्वेजिव, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, एबीपी है, ये चार जुमले बस पूछेंगे आपसे, ठीक है। अगर इन्वेजिव होता तो इसी के इर्द गिर्द आप लोगों को ग्राउंड ग्लास हेज बड़ा गंदा मिल रहा होता, ठीक है। और इसकी डीडी में अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस आप सोचते जैसे तैयबा सोच रही है, तो वो एक लंग को नहीं करता है, वो बोथ को करेगा। बायलेटरल अपर लूप्स, बायलेटरल अपर भी, मिड भी, कभी कहीं पे भी आ सकता है, एसोसिएटेड ब्रोंकिक्टेसिस होगी। अब इसको रेस्मुसन एन्यूरिज्म आप नहीं बता सकते हैं। अब ये सवाल एक और पूछा था मुझसे कि व्हाई द फंगल इन्फेक्शन ग्रोज विद इन अ कैविटी, ये भी एक अनयूजुअल सवाल था। हाँ सर, क्योंकि उसको सही है, इसलिए क्योंकि एयर कंटेंट वेंटिलेशन का हमेशा जी ऊपर सर, ही एयर होता है। कंटेंट, जी सर, जी सर, ठीक है, ठीक, चलें, वेरी नाइस मीशा।
जबरदस्त, sir. पास तुम भी माशाल्लाह। जी सर, ठीक है भाई, thank you sir. नेक्स्ट कैंडिडेट इज FCPS रिमेनिंग लास्ट 5-6 कैंडिडेट्स। आ जाए डॉक्टर सदीद, आप आ जाइए। वालेकुम सलाम। ओके भाई, एवरीवन लिसन हिम। स्टेशन नंबर 19। Employed with CT scan, chest, axial sections at the level of the aortic arch and heart and great vessels, and a chest X-ray frontal projection. On the CT scan images, there are multiple ground glass opacities in the peripheral lungs, extending in both lungs and upper and lower lung zones. And chest X-ray, there are multiple peripheral opacities in bilateral lung fields. These findings are suggestive of peripheral ground glass opacities. But these are cryptogenic organized pneumonia, COVID. Okay. Next, I would like to. Okay. So what are the other DDs of peripheral opacities or reverse bat wing appearance, Dr. Sadid? Coop, COVID, cryptogenic organized pneumonia. Good. ठीक है, Next one. ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस, क्रिप्टोजेनिक, ठीक है, पल्मोनरी हेमरेजेस, इजनोफिलिक निमोनियाज, कोविड निमोनियाज। तो कोरैड निमोनिया की पूरी लॉजिक आनी चाहिए, सही है। और दूसरा ये कि अक्सर व बेशतर वेस्कुलाइटिस भी पेरिफेरल हो सकते हैं। ठीक है, तो NSIP, UIP, ये सारी चीजें, बाय द वे ये केस कोविड निमोनिया का था। ठीक है। एक कैंडिडेट और आ जाए सदीद के, और इसमें अगेन फिर आप लोग वायरल मार्कर्स, ESR, CRP, ये सारी चीजें करा लेंगे। ठीक है, रिपीटेटिव चेस्ट एक्सरे करा करा के इसको देखते रहेंगे। अच्छा ये बताएं सदीद, एक सवाल है इसमें, सॉरी म्यूट हो गए आप। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्स बैटविंग वर्सेस माइग्रेटरी ओपेसिटीज? We will do pseudoradiographs and migratory opacities will change position. Pseudoradiographs and reverse batwing position will show opacity near the inhale region, which opacity in the periphery, which stay on the inhale region. हाँ, यानी ये कि वो आपको एक जगह से हट के दूसरी जगह फॉलो अप एक्सरेज पे नजर आते रहेंगे। और उसकी DD आप लोग याद कर लें, इन्हीं DDs की एक फॉर्म होती हैं जिनमें अगेन हेमरेज, वेस्कुलाइटिस, ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया आ सकते हैं, इजनोफ्लिक निमोनिया आ सकते हैं। ठीक है सदीद, वेरी नाइस। म्यूट हो जाए। नेक्स्ट कैंडिडेट इज जी, क्रॉनिक इजनोफ्लिक निमोनिया रख सकते हैं, सारी पेरिफेरल ओपेसिटीज की DD रख सकते हैं। ये केस एहतियातन कोविड निमोनिया का था हमने। ठीक है। TB में सिस्टिक ल्यूसेंसीज वो हैं, ब्रोंकिक्टेटिक कैविटीज थी। बुशरा, ये जो पीछे केस था ये ब्रोंकिक्टेटिक कैविटीज ही थी, जिनमें एक कैविटी के अंदर, थिक वॉल कैविटी के अंदर फंगल आ रहा था। ठीक है, हमने और बुशरा चैट बॉक्स में बताते हैं, समझ आया। नेक्स्ट कैंडिडेट आफ्टर सदीद इज आखिरी FCPS के जो रह गए हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए बेटा। कौन रह गया है? समी, अनवर, सना, जहरा कोई है? जी सर, मैं समीउल्लाह। समी आ जाओ जी। वेरिकॉइड रख सकते हैं इस वैरायटी को, वेरिकॉइड, ट्यूबुलर, सिस्टिक, हर चीज रख सकते हैं। ठीक है, फॉलो अप पर आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कि पैटर्न कैसा है। ठीक है, हम ना कोरेड इजी करके नहीं बता सकते आयशा, वो देखें ओरेड, कोरेड, बायरेड, पायरेड और टाइरेड, इन सब का आप सबको चार्ट याद करके जाने। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ना इसकी अलग से कोई निमोनिक है। समी आ जाइए। X-ray chest frontal projection in which I can appreciate a large air fluid level appreciated in the mediastinum. This large air fluid level representing hiatal hernia. Further, it could be confirmed with the fluoroscopic images and both CP angle and rest of chest, lung field and bony images appear unremarkable. Okay, so you said hiatal hernia when, Yes. however, there is some air lucency within the beneath the left hemidiaphragm.
स्टिल हाइटल हर्निया। पैराइसोफेजियल हर्निया। पैराइजोफेजियल हर्निया इज अ गुड डीडी। ओके, तो वो तो वही हो गया ना, जी पैराइजोफेजियल सर। तो वही रोलिंग हो गया, यानी हर्निया की ही दो टाइप्स हैं। और कोई चीज रेट्रोकार्डियक एयर फ्लूइड लेवल की डीडी को सहमत देगी? एनीथिंग दूसरा रिलेटेड विद पेनक्रियाज? वो हार्ट सूडोसिस्ट, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। वेरी नाइस, पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट हो सकती थी ये, और इन्फेक्टेड अगर होता उसमें एयर फ्लूइड लेवल आता। और कुछ खास? डायफ्राम के लेवल के ऊपर है ना? जी सर। तो कोई खास आउट पाउचिंग होती है डिस्टल ईज़ोफेगस की, वो भी डीडी में आ सकता था। एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम, वेरी नाइस। व्हाई दिस इज नॉट एकलेजिया? एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम का ही केस है ये, परेशान ना हो आप लोग। लेकिन ये कि रेट्रोकार्डियक एयर फ्लूइड लेवल में ये सारी डीडीज आप रखेंगे जो मैंने बताया है। एनीथिंग रिलेटेड विद अ पीडियाट्रिक एज ग्रुप समी? स्टमक पीडियाट्रिक की? एज ग्रुप, कंजेनिटल जी, कंजेनाइटल स्टमक रिलेटेड कुछ? हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। उसमें तो डिस्टेंड होगा स्टमक, ऊपर थोड़ी आएगा। कोई खास होता है जिसमें एनाटमी चेंज हो जाती है, ग्रेटर की जगह लेसर, लेसर की जगह ग्रेटर? ऑर्गेनोएक्सियल वल्वुलस। वॉल्वुलस है क्या? वाई ऑर्गेनो एक्सियल? डायरेक्ट बोले वॉल्वुलस, वो एग्जामिनर के कोर्ट में गेंद डाले ना, वो खुद कहेगा ऑर्गेनो या मेजेंटेरो, फर्क बता दें। समझ रहे हो? इस तरह वाइवा की ट्रिक है ये। वेरी नाइस। वॉल्वुलस हो सकता है, हर्निया हो सकता है, एक लेजिया ये हो सकता था। जी सर। एक लेजिया नहीं होगा क्योंकि उसमें ईज़ोफेगस की पैराट्रेकियल स्ट्राइप भी वाइडेंड हो जाएंगी ना। अभी तो ठीक जी नॉर्मल सर। है ये, ठीक है। यानी लिमिटेड है ये हार्ट के पीछे। तो पेनक्रियाज रिलेटेड इन्फेक्टेड सूडोसिस्ट आप कह सकते थे। हर्निया अगर डायफ्राम इंटैक्ट नहीं होता, वैसे अभी सही है। वैसे एक केस एपिफ्रेनिक डायवर्ट, लार्ज एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम का है। ठीक है समी, वेरी नाइस। नेक्स्ट इज सना जहरा सोबिया आसिम। कोई रह गया है एफसीपीएस में? सना जहरा, सोबिया आसिम, सुमेरा बतूल, एनीवन हु इज लेफ्ट? जल्दी जल्दी आ जाएं, फिर एमसीपीएस का टर्न लेना है मुझे। समरा, तायरा, नो वन? चलें तो एफसीपीएस मुकम्मल है। जी एफसीपीएस सर मैं। तायरा तुम हो, चलो एफसीपीएस ना। जी ठीक। सर। जी सर। हम्म कोई और रह गया एफसीपीएस का तो जरा हैंड रेस कर ले जिसकी बारी नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद आप लोग चले जाइएगा, या बल्कि रहिएगा, फायदा ही होगा आपको। जी। Sir, I'm provided with the CT test, selected images in which I can appreciate that bilateral symmetrical ground loss opacities are appreciated. With giving with central areas of air sparing, giving mosaic attenuation in keeping with history of fever, chills, and myalgia. It could be नहीं सर, इसमें nodules तो नहीं है, वरना chronic नहीं, मगर मैं टेस्ट भी सोच रही थी। नहीं सर इसका sir, it could be an acute infective process. Acute infective process. Considering the history, what acute infective process? Sir, it could be हिस्ट्री देखें ना ऊपर, फीवर, चिल, माइल्जिया, ल्यूकोसाइटोसिस। नहीं सर, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं, ग्राउंड ग्लास है ना? जी फिर ये सर। देखें आप लोग, गौर से देखें, थोड़े बहुत एयर ब्रोंकोग्राम, मतलब ब्रोंकिक वो है, लीनियर ब्रोंकिक्टेसिस भी है, गुड। और ये देखें थोड़ा बहुत मक्खी का छत्ता है ना, ये देखो तायरा। जी सर। क्या सोच रही हो? सर ये मक्खी का कबूतर छत्ता तो पालता था। खाने का और सर HSP होता है ना, मगर उसमें नोड्यूल्स नहीं मिले मुझे, इसलिए मैंने उसको HSP सोचा था, मगर मैंने उसको नहीं बनाया।
ये तो रहे इतने भर भर के सेंट्रल लोब्यूलर नोड्यूल, इसी को ही तो अच्छा, कहते मैंने हैं। इसको ग्राउंड ग्लास में ले गई इसको। जी सर, ठीक है, सेंट्रल देखिए नोड्यूल्स। स्टार्ट तो ग्राउंड ग्लास हेज से ही होगा ना, थोड़ा ग्रे और ब्लैक मोजाइक हेड चीज पैटर्न, फिर ऐसा ऐसा जो नोड्यूल होंगे वो सेंट्रल लोब्यूलर नोड्यूल, उसकी फिर एक सेकंड लास्ट स्टेज जो अभी खुबाब है, यहाँ पे खुबाब जो मैं बता रहा था, हनी कॉम्बिंग शुरू हो जाएगी, और फिर इसका एंड रिजल्ट अगेन दैट विल एंड इनटू फाइब्रोसिस। तो ये जी भी सर, वो क्रॉनिक बीमारी HSP है। अगर वो ज्यादा अपर लोब्स हाँ, में होती है। हाँ, जी सर। ये इसका इसका दूसरा नाम भी है ना तेरा HSP का, किसी को दूसरा नाम याद है? एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वुलाइटिस। एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वुलाइटिस, ठीक है। और तायरा ये याद कर लो, ये उन बीमारियों में से है तायरा, ये सब लोग याद कर लें, जिसका चेस्ट एक्सरे इनिशियल नॉर्मली होता है। जब आप लोग वाइवा में बैठे और अगर एक्सरे लगे और लगे कि भाई ये एक्सरे तो नॉर्मल है, तो प्लीज रिमेम्बर डॉक्टर शारिक वर्डिंग कि 5 चीजें एक्सरे पे बज़ाहिर नॉर्मल लगेंगी, ये याद कर लीजिए। एस्थमा, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, HSP, लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स और अपाइकल न्यूमोथोरैक्स। क्या बताया मैंने तायरा? 5? सर, अस्थमा, एओर्टा प्रोटेक्शन, HSP, लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स और अपाइकल न्यूमोथोरैक्स, ये 5 चीजें याद रखिएगा आप सबके सब। अगर आप लोगों को लगे कि चेस्ट एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमारे कैंडिडेट को फेल कर दिया था नॉर्मल एक्सरे पे तायरा, उससे अस्थमा पूछ रहा है वो, और वही अस्थमा कह रहे हैं ये देखो 2 साल बाद का CT, उसमें कॉर्पल्मोनियल डेवलप हुआ हुआ था। तो मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, बस औकात, और बाद में वो कह भी रहे थे कि तुम्हें नहीं पता एक्सरे एस्थमा का इनिशियल केसेस में नॉर्मल आता है। तो इस तरीके से भी आप लोग का वाइवा हो सकता है। एवरीवन रिमेम्बर, वेरी नाइस। तायरा म्यूट हो जाओ। तो FCPS में आपको ये रह गया है, HSP का ये केस था, अगेन आप फॉलो अप एक्सरेज करा करा के इसकी स्टेजिंग देखते रहेंगे। सना आप रह गई हो, जल्दी आ जाओ। I'm provided with an HRCT images in which I can appreciate that there is axial and the coronal slices are provided to me, in which I can appreciate that there is dense dense ground glass opacities are noted, which are distributed throughout the lung parenchyma. I can appreciate the crazy paving pattern of this ground glass haze as well, and I can also I can these they're predominantly seen in the bilateral bilateral, more so in the bilateral upper and mid zones, but left lower lobe, left lower lobe is also involved in this case. I can also appreciate that there is a mild bronchial thickening as well, and there is architectural there is there are tiny cystic areas, and there are areas of the architectural distortion also noted, which are scattered throughout the lung parenchyma, along with the tiny cystic linear lucent areas also noted adjacent to it. So my findings are I can also appreciate a few interlobular septal thickenings are also noted in it. So peripheral ground glass opacities are noted. So my findings are concerning for peripheral organizing pneumonias. And ओके, peripheral और कोई चीज, और कोई देखो, पेरिफेरल है या बैटविंग है, ये बताओ सुनो, ज्यादा एपिसेंटर क्या है? सर मुझे ना ये जो लास्ट वाली जो इमेजेस उसमें है, उसमें मुझे सर लग रहा है कि जैसे ये जो है वो मतलब पेरिफेरल थोड़ा सा नहीं, जो एक्सिल वाले इनमें तो सर ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह से वो है। कोरोनल पे? कॉर्नल पे सर लग रहा है कि कॉर्नल और जो सेंट्रल उसमें लग रहा है, पेरिफेरली उसमें नहीं लग रहा। चलें फर्ज करते हैं कोरोनल ही सोचते हैं और बैटविंग ही सोचते हैं, तो क्या DD आ रही है देन? सर बैटविंग की रीडीज में तो सर सबसे पहले जो है वो इसमें मुझे सिस्टिक एरियाज लग रहे थे और ग्राउंड ग्लास हेज लग रहा था। इफ आई थिंक ऑफ द बैटविंग रीडीज तो मैं नीमोसिस्टिस निमोनिया सर इसमें सोचूंगी, नीमोसिस्टिस निमोनिया और पल्मोनरी मैं कह रहा हूँ एल्वेओलोपोरोसिस। एड्स का पेशेंट ये नहीं है।
Sir, pulmonary edema इसकी डिजीज में pulmonary hemorrhage और pulmonary alveolar proteinosis, तो ये चीजें इसमें। और मैं कह रहा हूँ कि इस मरीज के ब्रोंको एल्वुलर लेवाज पे म्यूकॉइड मटेरियल आए, अब क्या है? Sir, bronchoalveolar carcinoma. ब्रोंको एल्वुलर लेवाज पे म्यूकॉइड मटेरियल आए, अगेन ग्राउंड ग्लास हेज है, सेप्टल थिकनिंग है, क्रेजी पेविंग तो हो गया ना, तो आप डायग्नोसिस से इधर हो गई, पीसीपी की तरफ ले गई इसको, ये पीएपी है, पल्मोनरी एल्वुलर प्रोटीनोसिस, ये ठीक है। चलें, तो ये देख लें सर ना, बताया सही है, परेशान ना हो। कोरोनल पे बैटविंग डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही, रेटिकुलर नोडुलर इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न है, बैटविंग ओपेसिटीज हैं, सेप्टल थिकनिंग है, क्रेजी पेविंग है, ठीक है। तो पीएपी देखें, उसी में ब्रोंको एल्वुलर लवाज करेंगे ना, एलडीएच वगैरह देखेंगे, म्यूकॉइड मटेरियल देखेंगे, है ना, ठीक है, सही है, समझ आया सर ना? जी से समझ आया। ठीक, अगर आपको एड्स की हिस्ट्री दे देते हैं फिर क्या बनाती हैं इसको? सर फिर मैं नीमोसिस्टस बनाती। लेकिन उसमें ना बहुत थिक वॉल्ड आएंगी कैविटीज, इसमें अभी कोई कैविटीज नहीं है, इसमें बेसिकली जो छोटी सिस्टिक एरियाज नजर भी आ रहे हैं वो भी ब्रोंकिएक्टेटिक कैविटीज ही हैं बेसिकली, छोटी। ओके, नाउ आफ्टर एफसीपीएस ना, म्यूट हो जाए, एफसीपीएस के बाद अब एमसीपीएस की बारी होगी। ये बताइए एफसीपीएस में कोई रह तो नहीं गया ना भाई, कोई भी नहीं रह गया? चलें, एमसीपीएस में तैयबा आयशा कोई है यहाँ? डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर आयशा इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलें भाई आयशा। So this patient has a post positive past history of occupational disorder. चलें, एफसीपीएस वाले भी रुक सकते हैं। Sir, I'm provided with the CT axial slices of mediastinal window. There is pleural thickening is noted in the right lower lung zone, and there is also so there are also some Recording stopped. So fatty, इसमें से the arch of aorta is okay, and so with internal specs भी आ रहे हैं इसके अंदर, और इसके जो एब्डोमेन में स्लाइसेस शो कर रहे हैं, hypodense lesion is noted in the abdomen and on the left side, and so there is also multiple lymph nodes आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एनहांसमेंट आ रही है, बिल्कुल इफ्यूजन भी आ रही है। राइट साइड इन्वॉल्व है या लेफ्ट है? से इसमें से लंग जो है से राइट साइड पे तो इफ्यूजन आ रही है, नोडुलर प्लूरल एलिवेशन भी आ रही है ना? यस सर, इसमें भी आ रही है, और सर नोड्यूलर तो सर सार्कोइडोसिस में नोड्यूलर हो सकता है, कोई इन्फेक्टिव प्रोसेस हो सकता है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर पॉजिटिव है ना? ऑक्यूपेशनल में सर ये वाला भी कौन सा केस देगा था? ये वाला कौन सा देगा था? प्लूरल कैल्सिफिकेशन वाला? सर यस सर, ये मेसोथेलियोमा का सर केस आ रहा है। तो ये सर ये तो मेसोथेलियोमा ही तो था। एस्बेस्टोसिस रिलेटेड था सर। यस, ये आ रही है ना प्लूरल नोडुलर? प्लैग्स, यस सर, प्लूरल नोडुलर प्लैग्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत देखें, यस कैल्सिफिक फोका आ यस रहे हैं, सर,
तो पेरिटोनियम भी तो इन्वॉल्व हो गई, ये भी तो देखो, रिप भी तो इन्वॉल्व हो गई, कैल्सिफिकेशन यहाँ पे भी आ रही है। तो स्टेजिंग क्या बना रही हो इसकी आयशा? T1 T2 सर T3 या ये सर T4? नीचे भी चल सर T4 सर नीचे भी चला गया ऊपर से। हाँ, ब्लड बॉर्न अगर हो जाती है मेट्स हर जगह ना, लिवर में डिपॉजिट्स आ जाते हैं, नोडल डिपॉजिट सर आ फिर जाते हैं, तो 4 कहती। अभी तो यूं समझो कि राइट T3 है ना, क्योंकि एब्डोमेन राइट इन्वॉल्व हो जाता है। T1 में जिसको नहीं पता वो याद कर लीजिए मेरे साथ, अगर इप्सिलैटरल लंग प्लूरा इन्वॉल्व है T1, कॉन्ट्रालैटरल प्लूरा इन्वॉल्व हो जाए, या चेस्ट वॉल इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, या पेरिकार्डियम इन्वॉल्व हो जाए, ये सब, तो ये T2 है। T3 में थोरेक्स एब्डोमेन दोनों हो जाएंगे, और 4 में फिर हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस। ठीक है आयशा, याद रहेगा केस? यस सर ठीक है, वेरी थैंक यू नाइस, ये पढ़ लेना, ठीक है सबके सब। बाकी सवाल आए एम्फाइसीमा, नेसेसिटेंस, सोरेसिस, ये हो सकता है। अगर तो बाहर जा रहे जैसे ये जा रहे तो वो भी हो सकता है। डीडी अच्छी है, लेकिन इसमें देखें होल प्लूरा हैज बीन इन्वॉल्व्ड, और एग्जामिनर आपको जब इतनी बड़ी हिस्ट्री दे रहा है कि पॉजिटिव पास्ट हिस्ट्री ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, तो वाई अदर डीडीज? ठीक है, सही है ना तैयबा? आ जाओ भाई, तैयबा आप आ जाओ। एमसीपीएस और कौन रह गया अपना? राहिल, तुम आ जाओ जरा। राहिल है यहाँ? नहीं है, अच्छा वो भी शायद। अरबाब की तो हो गई थी ना। मारिया फ्रॉम कराची एक्सरेज, वजिया, सैयदा सादिया। एमसीपीएस वाले जल्दी आइए, 11:15 तक वाइंड अप कराने हैं, जल्दी आइए। राबिया, राहिल, तैयबा, कोई भी नहीं आना चाह रहा एमसीपीएस में? यार फिर सर बोलते हो मैं आ अलग जाती पढ़ाएं। हाँ मारिया आइए। अस्सलाम सर मारिया है। वालेकुम अस्सलाम, चलें। जी सर। Sir, I'm provided with X-ray chest frontal projection and multiple slices of CT chest, in which involves axial slices and coronal slices. I can appreciate in a chest X-ray there are linear radiopasities involving both lung fields. Both heart borders are right heart borders indistinct, while I can appreciate left heart border. Trachea is centrally placed. No abnormality seen in the bones. However, in CT scan, multiple scattered linear radiopasities also noted. ठीक है, कहाँ गई है मारिया? मारिया आप म्यूट हो गई अचानक, वापस आइए। हेलो, ये मारिया कहाँ चली गई यार? हेलो, ठीक है, मारिया के अलावा कोई आना चाहेगा? साहिल, रबिया, तैयबा, फातिमा कौन थी? अरबाब आप थी ना? आ जाओ। Sir, no, वालेकुम सलाम। I am provided with chest X-ray for CT scan windows, axial and coronal images. In the chest X-ray, I identified multiple hyperdense nodular opacities throughout the both lung fields. More on Sorry, the sir, beta and my net was disconnected. अच्छा फातिमा, 1 मिनट रुकना, मारिया को ही मौका देते हैं। जी okay. मारिया, कंटिन्यू योर स्लाइड। Yes, sir. Sorry for the No net issues. disruption. My diagnosis is alveolar microlithiasis. Further, I will do broncho alveolar lavage to see the presence of stones. Okay, so this was a case of alveolar microlithiasis. You were right. What association does alveolar microlithiasis has, which you can help out by radiology? Sir, sir, I'm क्या not वो sure. सवाल मुश्किल है?
हाँ Sir, भाई can कोई I हेल्प answer? आउट करेगा इसका? जी भाई। Sir, ultrasound test करवाएंगे to see the testicular microlysis. टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस एसोसिएशन है ना, ठीक है मारिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी sir. ठीक है चलो मारिया एक केस और देखो जरा, क्योंकि जी बाकी sir. एमसीपीएस वाले आ नहीं रहे, लास्ट केस तुम ही देख लो। चलो जी sir. Sure. Sir, sir, CT chest, CT chest, non-contrast CT chest with the axial slices and coronal slices. There are ground glass. There are multiple areas of consolidation noted involving both lung fields. There are also ground glass haziness also present with few areas of air trapping seen. Based upon the history, I will keep aspiration pneumonia in the diagnosis. Sir, the rest of the scan is normal. Okay. Based on the history of grade 3 burn, Yes, sir. what diagnosis would come in your mind? Sir, it is aspiration pneumonia, sir, because there are areas of consolidation in both lung fields, which is indicating infection. Aspiration pneumonia leading to ARDS. ये acute respiratory, adult respiratory, acute respiratory distress syndrome है basically, जो again bat wing distribution दे रहा है. Pulmonary एक तरीके से edema, बल्कि और advanced variety एक तरीके से hemorrhage की तरफ जा रही है कहानी. Interstitial edema है, opacification है, ground glass haze है. Even अगर बहुत गौर से देखें तो छोटी छोटी subpulmonary cysts नजर आ रही हैं. ये सब एक feature होता है ARDS का. यही चीज बच्चों में हो जाती हमारी, आप फिर RDS जो अभी उसने दिखाया ना, Hyaline membrane disease, जी sir. हाइलाइन मेम्ब्रेन. ठीक है मारिया, मजा आया जी, sir. ओवरऑल सेशन में? आप सबको मजा आया? बाकियों को आया भी कि नहीं आया? कुछ सवालात और जहन का आइडिया हुआ एग्जामिनर के? जी सर. जी अब सर. आप लोग अपने अपने सवालात पूछना चाहें एक एक करके प्लीज. 10 लोग 20 लोग धावा नहीं बोल देना. 1 मिनट जरा एक एक करके हैंड रेस करें तरीकेकार Yes, से. sir. काइंडली डोंट दिस Informative session. थैंक यू. डोंट मेक दिस एज अ फिश मार्केट. एक एक करके आप लोग हैंड रेस कर लें. अगर अभी भी किसी के